آپ باتوں میں لگ گئے، مجلس کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیتیں نہیں تھی آنے کی، ارادہ نہیں تھا آنے کا، اچانک ویر خدا نے آپ کا اس طرف منتقل کر دیا جہاں مجلس ہو رہی تھی. کانوں میں آواز پہنچی، آپ کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آگے جاؤں. آپ نے اپنے ارادے کو تبدیل کیا اور رضا خانے میں اپنے آپ کو داخل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نیکی کیا تھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کہ جس کی جزا خدا یہاں بٹھا کے دے رہا ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایسی چیز ہے جو فرش عزا جسے کہتے ہیں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے عام مجمع. عام مجمع آپ کو ہر جگہ ملے گا. آپ ادھر سے ہم آ رہے تھے، راستوں میں، چوراہوں میں، نکڑوں پر، ہر جگہ آپ کو عام مجمع ملے گا. کوئی کپڑا خرید رہا ہے، کوئی سبزی خرید رہا ہے، کوئی مکان خریدنے کی بات کر رہا ہے، کوئی لون لینے کی بات کر رہا ہے، کوئی قرض سے نپٹنے کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی سے نپٹنے کی بات کر رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی لڑائی کر رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عام مجمع ہے. جو ہر جگہ دکھے وہ عام مجمع ہے. جو فرش عزا پر دکھے وہ امام کا مجمع ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. بہت ہی آسانی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ اس میٹیریل زنامے میں کیا ہوتا ہے کہ بار ذہن چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ صبح نکلتے ہیں ممبئی کے لیے، شام کو واپس آتے ہیں. یہاں تو آدھی عمر ٹرین میں گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں کھڑے ہو کے داد بہت کم دیتے ہیں، اس لیے کہ ٹرین میں اتنے کھڑے رہتے ہیں کہ پھر کھڑے ہونے کی ان کی ضرورت ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد بھائی. تو یہاں بیٹھ کے ہی داد مل جائے بہت بڑی بات ہے. تو آدھی عمر تو وہی نکل جاتی. تو آپ ایسے سچویشن میں آپ ہیں تو ایسا نہ ہو کہ گفتگو بار ذہن ہو. دیکھیے، یہاں پہ 1 گھنٹہ لوگ پڑھتے ہیں، 1.5 گھنٹہ پڑھتے ہیں. یہ تو فرش عزا کا معجزہ ہے کہ لوگ سن لیتے ہیں. بے شک. ورنہ نیچرل سائنٹسٹ جو علم نفسیات ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ 20 منٹ سے زیادہ آپ کسی کے ذہن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. 20 منٹ سے زیادہ. اسی لیے بڑی بڑی کارپوریٹ جو بڑے بڑے جو ادیوگ پتی ہوتے ہیں ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے، ان کے میٹنگ کا ڈسٹینس ہی ہوتا ہے 20-20 منٹ کی میٹنگ، تاکہ جو بات کہی جائے وہ ذہن میں آ جائے. لیکن یہ فرش عزا کا توسل ہے کہ بات ذہن میں آئے کہ نہ آئے، لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ رہے بات؟ یہ فرش عزا کا صدقہ ہے کہ بات ذہن میں آئے کہ نہ آئے، لیکن لوگ سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ کہ ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک. فرش عزا پر کون بیٹھا ہوا ہے اسے محسوس کرنا ہے کہ وہ عام مجمع نہیں ہے. سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے، عام مجمع نہیں ہے، وہ امام کا مجمع ہے. اور فرش عزا انسان کو ری جنریٹ کرتی ہے، ایکٹیو کرتی ہے. ری جنریٹ کرنا، ایکٹیو کرنا. دیکھیے، ہوتا ہے جب آپ آئی فون لیتے ہیں تو جو اس کا ورژن ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے. جو 2020 کا ہوگا وہ 2022 میں نہیں ہوگا، جو 2022 میں وہ 2023 میں نہیں ہوگا، جو 2023 میں جو 2024 میں نہیں ہوگا. کیونکہ 2022 کی ضرورتیں الگ ہیں، 2023 کی ضرورتیں الگ ہیں، 2024 کی ضرورتیں الگ ہیں. مگر فرش عزا وہ ہے کہ جو قیامت تک کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک
आदमी को डेवलप करता है, आदमी को रीजनरेट करता है। बेशक। अब वो कहीं कामयाब हो गया तो वो अपनी तुर्रम खानियत की बिना पर ये ज़रूर कहेगा कि ये मेरी ज़हन का सब करिश्मा है, मेरे कुव्वत बाजू का कमाल है, ये सब चीज़ें वो चलती रहती, मगर ऐसा नहीं है। ये सब इस फर्श अज़ा का तवस्सुल है, किसी की होशियारी कुछ होती नहीं। बड़े बड़े होशियार बड़े कुछ नहीं कर पाए, मगर जिनके पास अक्ल नहीं हो बहुत कुछ कर जाता है। इसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं आज़ादारियों की मेहरबानियाँ उसके सर पर जलवा अफरोज है। ये वो मेहरबानियाँ होती हैं कि जो ज़र्रे को आफ्ताब बनाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसे आप मिस न करें, ये बहुत बड़ा सरमाया है हमारे और आपके लिए। आप छोटा सा इलाका है जिसमें आप बैठे हुए हैं, इसे इलाका मत समझिए छोटा सा, ये बहुत बड़ा सरमाया है आपका। आपके जुमले, आपकी बात, आपकी तहसीन, आपका वाक़या, आपका किसी नुक्ते को एप्रिशिएट करना। ये एप्रिशिएट करना इस बात की दलील है। एप्रिशिएट कौन करता है? कोमा में जाने वाला एप्रिशिएट नहीं करता किसी चीज को। जो कोमा में है उसे कुछ भी सुना दीजिए, उसके सेहत पे क्या असर पड़ेगा उसे पता ही नहीं। एप्रिशिएट करना इस बात की दलील है कि आप जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आपका दादो तहसीन की सदा इस बात की अलामत है कि यह कौम मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महसूस कर रहे हैं? ये फर्शियत एक बहुत बड़ा सरमाया है हमारे और आपके लिए। ये किसी एक मसलक, किसी एक इंसान, किसी बशरियत के नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सल के लिए मशअले राह है। ये कितना बड़ा मशअले राह है कि गांधी जी को कहने की क्या जरूरत है इमाम हुसैन के बारे में? क्या जरूरत है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कितनी बड़ी हैसियत थी। मैं समझाने के लिए सिर्फ इस नाम का सहारा ले रहा हूं ताकि आप समझें कि इसका असर का दायरा कितना बड़ा है। कौन कौन एप्रिशिएट करता है? नोट पर गांधी जी है कि नहीं है? लेकिन कौन ऐसी बैंक है कि जिस बैंक में गांधी जी के नाम पर कुछ बैंक बैलेंस है? नहीं। स्विस बैंक में है? नहीं। करप्शन के कुछ चार्जेस हैं? नहीं। आपने कभी न्यूज में झूठी खबर भी सुना कि उन्होंने इतनी संपत्ति को इकट्ठा किया है, हालांकि सारी बागडोर उनके हाथ में थी, कुछ नहीं था। मगर नोट में गांधी जी हैं। उनके पास नोट नहीं है मगर वो नोट में है। वाह वाह वाह। उनके पास नोट नहीं है जी जी, सुभान अल्लाह। मगर वो नोट में है। अगर उनके चश्मे से भी आपने छेड़छाड़ किया तो वो नोट नहीं चलेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? उनके चश्मे से भी आपने छेड़छाड़ किया तो आपकी नोट नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? कि भाई उससे आप छेड़छाड़ कर रहे हैं कि जिसने देश को आजाद किया है। मैं कहीं आपको ले जाना चाहता हूं। आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं कि जिसने देश को आजाद किया है। तो जिसने देश को आजाद किया है, जब उसकी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है तो जिसने पूरे इस्लाम को आजाद किया हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बहुत ही आपके नजर के सामने की सारी मिसालें। जिसने देश को आजाद किया हो उसके साथ आपने उसके साथ नहीं, उसकी तस्वीर के साथ, उसकी तस्वीर में उसके चश्मे के साथ अगर आपने छेड़छाड़ किया हो तो बर्दाश्त नहीं होगा, आपकी नोट ही नहीं चलेगी। तो जिसने पूरे इस्लाम को आजाद किया हो
उस हुसैन की इज्जत से अगर किसी ने छेड़छाड़ किया हो तो न उसकी नमाज चलेगी, न उसका रोजा चलेगा, न उसका हज चलेगा, न उसका ज़कात चलेगा, उसका कुछ नहीं चलेगा। बस यहाँ चलेगा नहीं, महशर के मैदान में जलेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जलेगा वहां, जलाया जाएगा। क्यों जलाया जाएगा? कि उसने उसकी इज्जतों का एहतराम नहीं किया, कि जिसने इस्लाम को आज़ाद किया है। देखिए 3 तबका होता है, 3 फेसेस होते हैं, लाने वाला, फैलाने वाला और बचाने वाला। एक होता है लाने वाला, एक होता है फैलाने वाला, एक होता है बचाने वाला। जो दीन को लाए उसे मोहम्मद कहा जाता है, जो दीन को फैलाए उसे अली कहा जाता है, और जो दीन को बचाए उसे हुसैन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेशक। जिसने दीन को बचाया उसे हुसैन कहा जाता है। तो महसूस कर रहे हैं आप, जो आप बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा तोहफा है सरकार सैयद शुहदा का, जिसे आप फर्श-ए-आज़ा कहते हैं। फर्श-ए-आज़ा पर बैठ के इंसान आम मजमे का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि इमाम के मजमे का हिस्सा होता है। इमाम के मजमे का जो हिस्सा बन जाए वो बेनियाज होता है। बेनियाज की मिसाल आपको दूं, वो घबराता नहीं, वो फिक्रमंद नहीं होता, वो किसी के दबाव में नहीं आता, वो किसी से इंप्रेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि बेनियाज है। बेनियाज का मतलब क्या? अगर मैं तर्जुमा करूं तो शायद बहुत ताखीर हो जाएगी, मगर एक मिसाल दूं जिससे आप समझ सकते हैं। अब किसी को डीजीपी से अगर मुलाकात हो, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, डीजीपी किसका होता है? पूरे स्टेट का होता है। पूरे स्टेट की पुलिस उसके हाथ में होती है। जब डीजीपी उसके हाथ में है और यहाँ का एसपी अगर आकर के आपको इम्प्रेस करना चाहे तो आप इम्प्रेस्ड होंगे? नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब